हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम श्योर आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू अगेन। चलो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। Yesterday we were covering securities analysis. We have covered broadly the entire chapter, but we had to some extent missed out technical analysis. That we'll cover today. But just to recap what we had done yesterday, we did fundamental analysis. Anyone want to tell me what is a fundamental analysis? Under fundamental analysis, it's primarily the strength of the company, the NPV of the future earnings, etc. Or I mean, fundamental itself is a word. So you studied economy analysis, economic analysis, you studied industry analysis, then within the industry different segment, and finally you studied the company analysis. You studied a couple of growth models, etc. We discussed about the efficient market hypothesis, that is market knows everything. ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ एनालिसिस करके कोई बहुत सुपर पावर शेयर निकाल के ले आओगे, बट आई एक्सप्लेन्ड yesterday again. I'll quickly explain again. When market is growing, majority of the people will get to be right in their assumptions, and when market is not doing well, people, if some people are projecting a share downfall, they might be right. So it's very difficult job. But basis these type of theoretical, or I'll say to some extent, tool based analysis, industry research, if you will do certain analysis, the chances of your success are much higher. That's why we are studying this chapter, and that's why this whole market. It cannot be the right standard that everything is false, people cannot predict, etc. The quantum and the magnitude people cannot, but a lot, lot of goodness or a lot of direction and the sentiments people can predict. This is the analysis. We also studied yesterday research tool, basically the software which can provide you all the information at one place. Today we are going to study technical analysis. हल्का फुल्का मैंने आपको कल भी बता दिया था इसे, but let's cover this chapter again today. So in technical analysis, okay, so here we are, the technical analysis. Technical analysis. Anyone want to comment what is a technical analysis? How is technical analysis different from fundamental? ये तो कल पढ़ा ही था. Fine. So technical analysis is a method of share price movement based on price graphs, trends, psychology of investors, certain pattern. Technical analysis is not concerned with the fundamental strength. कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, उससे टेक्निकल एनालिसिस को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. उसकी वीकनेस क्या है पता नहीं चलता. ये सिर्फ एक प्राइस ग्राफ, ट्रेंड, एवरेज, इस पर काम करता है. We'll just discuss in detail now. A technical analysis attempt to answer two basic questions. Is there a discernible trend in prices? The trend is important. Trend is friend. Trend is friend. अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सब लोग खरीद रहे तो मैं अलग खरीदूंगा. ठीक है, वो एक अलग थ्योरी हो सकती है, वो भी इसमें नीचे आएगी अभी. Is there indicator that trends would reverse? सबसे पहली बार टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है और if the trend is expected to reverse. Okay, so now going to the assumptions. This is the very important part. Technical analysis is based on the following assumptions. टेक्निकल एनालिसिस में काफी सारी assumptions होती हैं. So main assumptions are, देखो मॉड्यूल खोल लो अपना, मॉड्यूल का चैप्टर खोल लो. ये मॉड्यूल से ही मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ. ये जो मेरे नोट्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे. You can download it, but primarily these are 80-85% from the module only. मॉड्यूल से ही पेपर लिख के आना है, ज्यादा बेटर है. Market value, the stock depends on the supply and demand. The market value of stock depends upon supply and demand as on date.
एज एट प्रेजेंट। सो फ्यूचर में क्या कैश फ्लो होंगे, फंडामेंटल क्या है, उसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द assumption ऑफ ट्रेंड। स्टॉक प्राइस जनरली मूव इन ट्रेंड विच कंटिन्यू फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक आज बड़ा कल गिरेगा, आज बड़ा कल गिरेगा, ऐसा नहीं है। कोई ट्रेंड में ही चलते रहता है, या छोटा ट्रेंड हो सकता है बट वो चलते रहता है। आप बोलोगे सर ये नीचे क्यों कर रहे हो, वो भी ट्रेंड है ना। and will be substantial correction which will and there will soon be a substantial correction which will provide an opportunity for investor to buy the shares. तो चलते रहेगा, बीच में करेक्शन आएगी, यहाँ पर भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। The supply and the demand are actually governed by several factors which can be rational or irrational. अब देखो डिमांड और सप्लाई, कोई प्रोडक्शन तो है नहीं कि आप खेत देख के आइडिया लगा लो कि कितना प्रोडक्शन होने वाला है। इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं which sometimes may not work. For instance, recent initiative taken by the government, burden ban may result in the demand, गवर्नमेंट ने एक लाइन डाली उससे बाइंग आ जाएगी, या किसी का कोई एक मानसून अच्छा आया एग्री स्टॉक बढ़ जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ. So now basically what we bottom line is technical analysis doesn't consider the fundamental analysis. They are broadly based on the demand supply graph indicator trends, and those trends move in direction, and trend can be both side. Okay. So now principle, इसके तीन मेन प्रिंसिपल हैं. दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम थिंग मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूंगा. प्रिंसिपल्स और बेसिक assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. वेरी गुड. मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट. अभी हम यहाँ पे शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर प्राइस. सो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. एवरीथिंग का मतलब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमने पढ़ लिया. अगर किसी को लगा कि किसी के पास छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है, किसी को कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं पता, किसी को लगता है इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, सेक्टर बहुत ग्रो करेगा, इकोनॉमी बहुत, सब कुछ मार्केट को पहले ही पता है. मार्केट इज द किंग. मार्केट इज किंग. मार्केट इज द बेस्ट टीचर. सो मार्केट नोज एवरीथिंग. मार्केट डिस्काउंट्स का मतलब होता है कंसिडर्स फैक्टर्स. अगर किसी को कहीं शेयर का प्राइस बढ़ाना है तो बढ़ा देगी, घटाना है तो घटा देगी. प्राइसेज मूव्स इन ट्रेंड. This is the basic principal assumptions of technical analysis, that prices will move in trend. What does that means? Like जो prices हैं हमारे, वो एक ट्रेंड में ही चलेंगे up to a certain period and then there would be a substantial correction. ये मार्केट की फिलोसफी है. देखो अगर कुछ गिरना ही नहीं होगा, सब बढ़ना ही बढ़ना होगा, then there is no point. I mean then everyone can buy the shares. फिर तो रिस्क ही खत्म हो गया. हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ. टेक्निकल एनालिसिस बिलीव्स कि भाई जो एवरेज आउट है, जो पुरानी मार्केट कैसे चलती रहती है, किसी शेयर का क्या पैटर्न रहा है, ये सारी चीजें रिपीट होंगी. सो ओवरऑल देखो मार्केट इज प्रिवेलिंग सिंस 1920 और सो. आई मीन यूएस में, इंडिया की भी 1980 से आ चुकी है. तो सब तरह के फैक्टर, थ्योरीज, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आर अवेलेबल which can be studied and market will generally move in that favor. So बहुत सारी जब एक्सेस एक्सेस पी मल्टीपल हो जाता है, करेक्शन होनी ही होनी होती है. So it's a very interesting topic. Market itself is, there are many books written, many what do you call it, principles available. तो उसके बेसिस पर ये तीन बेसिक एजम्पशंस हैं टेक्निकल एनालिसिस की. चलो थ्योरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. पहले हमने ब्रॉड प्रिंसिपल पढ़े थे, अब हम डाउ जोन, अब इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे. देयर आर थ्री मेन थ्योरीज. डाउ जोन थ्योरी. डाउ जोन इज लाइक जैसे इंडिया में एनएससी बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यूएसए के एक्सचेंज को डाउ जोन इंडेक्स बोलते हैं. डाउ जोन डीजेएआई, डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज. सो नेस्डैक भी है बट डाउ जोन इज आल्सो वन ऑफ द मेन देयर. सो ये कहता क्या है? These averages reflect the aggregate impact of all kind of information on the market. So that's again the same thing. So Dow Jones theory क्या कहती है कि देखो मार्केट को सब कुछ पता है. It is a helpful tool for determining the relative strength of the stock. जिसने भी बनाया था, आजकल नाम भी पूछ लेते हैं कई बार, तो चार्ल्स डाउ ने बनाई थी. सो द बॉटम लाइन इज कि all going to the same, the primary movement, secondary movement, okay. So the averages reflect, जो averages होते हैं,
Averages reflect all type of information. फिर बीच में आपकी दी प्राइमरी मूवमेंट आएगी किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, देयर कैन बी सेकेंडरी मूवमेंट बेसिस सर्टेन इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा. तो पहले तो आपकी बेसिक एवरेज आ गई, फिर कोई आपकी गुड न्यूज आई या अर्निंग कॉल आई तो प्राइमरी मूवमेंट आई, एंड बेसिस ऑफ सर्टेन गॉसिप सेकेंडरी मूवमेंट आ गई. और जो आपकी प्राइमरी मूवमेंट है, बेसिस की कोई अच्छी अर्निंग आने वाली है, वो अराउंड 36 महीने तक चलती है. कंपनी की अपने कोई नया प्लांट लगा रही है, प्राइमरी मूवमेंट आई, 12 महीने से लेकर 36 महीने तक वो ट्रेंड रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द बुल मार्केट. सेम वे अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है, इट में लास्ट फॉर 2 वीक्स टू अगर कोई नेगेटिव मूवमेंट आती है किसी शेयर में तो वो 1-1.5 महीने तक लास्ट कर सकती है. ठीक है, द फ्लक्चुएशंस आर नॉट पार्ट ऑफ डाउ थ्योरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट. सो दे आर, दैट्स व्हाट द डाउ थ्योरी सेज. डाउ थ्योरी सेज दैट मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मार्केट नोज एवरीथिंग. देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स, फ्लक्चुएशंस. वन इज द एवरेज, जैसा सारे एवरेज कर रहे होंगे बाकी शेयर भी करेगा. किसी पर्टिकुलर शेयर में एक प्राइमरी मूवमेंट आ सकती है. बोलो प्राइमरी मूवमेंट बोल के निकल गया. प्राइमरी मूवमेंट का मतलब उस स्टॉक स्पेसिफिक या उस सेक्टर स्पेसिफिक कोई न्यूज आई है which may last for long period of time. It's such a significant news. Primary uptrend would have 3 moves. First one being casual and accumulation of the shares. ये important pair है. So second move would be caused by arrival of the first report of the good earning. And the last move would caused by the widespread report on the financial well-being. So सब लोग बोलेंगे. Third stage would be rampant speculation of the market. So third wave is like the towards the, इसको ध्यान से पढ़ते हैं guys. The third stage would be rampant speculation in the market. Toward the end of the third stage, the far-sighted investor, means long-term investment, realizing that high earning levels may not be sustained, would start selling. देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, आप बाय करते हो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद है आपको, तभी तो आप बाय करोगे. आप सेल करते हो देन यू एज्यूम कि अभी बस हो गया बहुत, अब शायद नीचे जाए अगर आपको कैश नहीं चाहिए तो. So जब वो सेल करेंगे तो मार्केट फर्स्ट मूव डाउन ट्रेंड एंड द नॉन सब्सटेंशियल हाई अर्निंग कंफर्म, सेकंड मूव डाउन इनिशिएटेड इन द थर्ड मूव. सो आपने देखा एक पैटर्न से चली फिर एक पैटर्न से वापस आ गई. आप बोलोगे सर ये तो इसमें कोई नई चीज नहीं है और क्यों नीचे आई. भाई यही मार्केट है, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस. एक शेयर वट एवर यू कैन कॉल इट, ओवर ए लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे, लॉन्ग टर्म का मतलब 7 to 10 years, 15 years, market historically have gone up only, and that reflects the strength of the economy. आप देखोगे रशिया की मार्केट शांत पड़ी हुई है, जापान की मार्केट शांत पड़ी हुई है, नहीं मूव हो रही. उसमें पता नहीं क्या कुछ ना कुछ नया आ जाता है, कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है. तो 20-20, 25-25 साल से इंडाइसेज आर नॉट मूविंग. बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही देके जा रही है. बट इन शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म एनीथिंग इज पॉसिबल. आप लोग भी, यू गाइस हैव सीन द कोविड, मार्केट 28-29 हजार से सीधे 17 हजार पे चली गई थी, 17 हजार के लेवल पर. मतलब जो मान लो कि उस समय हाँ यही चल रहा था तो 2000 में, इस समय 80 हजार पे बैठी हुई है. तो यहाँ पर 2008 में क्राइसिस आया था, आप लोगों को शायद पता ना हो, आप छोटे थे. मार्केट वहां पर भी 24-25 हजार से 8 हजार तक चली गई थी, 14 हजार तक 2 साल तक रुकी. आई स्टार्टेड जॉब, मैंने भी पैसे डाले हुए थे उस समय. सो but technical analysis means market factors everything. Definitely these type of black swan events will come जो किसी को नहीं पता होते. मैं बार बार बोल रहा हूँ, but that doesn't mean, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा. कुछ एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, किसी को नहीं पता होता इसका मतलब थोड़ी ना कि हम पढ़ेंगे नहीं. इलियट वेव थ्योरी. सो ये क्या कहती है, दिस थ्योरी वाज 75 ईयर की इन्होंने एनालिसिस किए. इसका कहने का मतलब है ये दो कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, इम्पल्सिव पैटर्न, करेक्टिव पैटर्न. Impulsive pattern means going upward, will be 3 to 5 waves given, ये impulsive pattern. So ऐसे कर करके शेयर जा रहा है, हर एक लंबी वेव जो होगी वो उससे और थोड़ी लंबी होगी. So 1 and 3 are actual leading indicators. This is impulsive pattern. Corrective pattern means कभी कभी मार्केट बीच में नीचे भी आएगी. So 2 and 4 may be also. So this is
आई मीन आप सोच रहे हो उसमें कौन सा ऐसा प्रिंसिपल बता दिया विलियट ने? कुछ नहीं बताया भाई, टाइम पास करके चले गए हैं। डाउ जोन ने भी टाइम पास कर दिया, और अपने कौन से हैं ये मिस्टर विलियट, इलियट, इलियट वेव थ्योरी ने भी टाइम पास कर दिया। मार्केट, दैट्स व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस इज। दैट्स व्हाई इफ यू hear the big sort of intelligent investors, they will definitely give some value to the technical, because trend is friend, etc., etc., but ultimately they will go with the fundamental analysis of the stock also, of the country or the stock, or तीसरा आ गया रैंडम वॉक। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये रैंडम वॉक है। रैंडम वॉक का मतलब कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। बट इसके ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी पुट आउट अ सिंपल आर्गुमेंट, प्राइसेस ऑफ द शेयर स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड। सिंपल कहानी है। रैंडम वॉक का मतलब कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड। रीजन इज दैट द प्राइस ट्रेंड्स आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर। नेवर बी प्रेडिक्टेड डज आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर। अभी ट्रेंड ट्रेंड बोल दिया, ये मूव हो रहा है, 20 दिन का इतना एवरेज था, भाई क्यों हो रहा है, वाई? इसलिए इसको रैंडम वॉक। देयर मे बी पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स इन द शेयर प्राइस, बट नो कनेक्शन कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन द टू सक्सेसिव पीक। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट पैरा है गाइस। मेरे को ना आइडिया आपको ये नोट भी दे देने चाहिए, बट मैं खुद ही ऐसे लिखता हूँ। मैं इसको थोड़ा तरीके से लिखना स्टार्ट करूंगा ताकि आपको मैं दे दूं, या फिर आप भी अपने मॉड्यूल पर पैराग्राफ में डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं इनको हाईलाइट करके आपको दे दूंगा। चार्टिंग टेक्निक्स, लाइन चार्ट देखते रहो भाई। लाइन चार्ट में ऐसे शेयर मूव हो रहा है, ट्रेडिंग ऑफ द डे। अब किसी को पता होगा कि जो डे ट्रेडर्स होते हैं, अब उनके लिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 50 रुपए पे खरीदा है तो दोबारा 48 आएगा नहीं, बीच में 48 भी आएगा। कोई एक बड़ा सेलर आ गया, उसने किया तो ये चला गया। एक बार 48 आ गया तो कोई बड़ा बायर भी आ गया। जनसंख्या, लो पॉपुलेशन, दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। भी आगे वॉल्यूम को ही पढ़ेंगे, ठीक है। बार चार्ट, बार चार्ट से आपको पता चल जाता है कि भाई डे का हाई कितना था, डे का लो कितना था। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, डे का एवरेज कितना था, ठीक है। अगर आप किसी मार्केट में घुसने जा रहे हो, जैसे ही मैं कोई स्टॉक खरीदने जाता हूँ, सपोज मैंने 11:30 12 बजे लॉग इन किया, मार्केट 9 बजे खुली थी, सुबह से शाम तक कितना घूम चुकी है। डू यू वांट टू बाय एट द डेज हाई और डेज लो? ये बार चार्ट से पता चल जाएगा आपको। Japanese candlesticks, lowest and highest price are indicatively vertical bars and opening and closing, ठीक है। सो बेसिकली सेम ही चीज है ये। अब हम आ जाते हैं ब्रेथ इंडेक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नीचे भी दिखाया गया है इन्होंने। सो ये एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मार्केट इंडिकेटर, क्या होते हैं। सो ब्रेथ इंडेक्स, तो वॉल्यूम कितनी है प्लस कॉन्फिडेंस कितना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक शेयर के लाख यूनिट अवेलेबल है मार्केट में, फुल्ली ट्रेडेड, अगर एक भी शेयर इसमें से, नंबर ऑफ शेयर, अगर इसमें से सपोज 10 शेयर, इसका नॉर्मल प्राइस सपोज 50 चल रहा है, अगर 10 शेयर 100 रुपए पे बिके तो किसी ने खरीद लिए, डबल द प्राइस, 2x। दैट डजंट मीन यार 10 शेयर में नॉट इवन कुछ भी नहीं है। सो बॉटम लाइन है कि वॉल्यूम, अगर इसी में सपोज डेली इसके इस 1 लाख शेयर में से सपोज डेली 1000 शेयर ट्रेड होते हैं, फिर भी 10 शेयर कुछ नहीं। बट अगर 100 शेयर्स पे, 100 शेयर सपोज 80 पे बिके, अच्छा तो बिकेंगे नहीं क्योंकि कैप फ्लोर होता है। बट अगर सपोज 70 पे बिके, जो भी बिके, तो फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन, मैं बहुत जल्दी बता गया, बट लेट मी रिपीट इट अगेन। एक शेयर जो है वो भी मार्केट में शेयर प्राइस चेंज कर देगा फॉर दैट पर्टिकुलर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएससी तो क्या है, बायर सेलर का प्लेटफॉर्म है। बायर सेलर, तो अगर एक बंदे ने सेल किया 100 रुपए पे, दूसरे ने 100 पे खरीद लिया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 100 रुपए आ गया। बट दैट्स नॉट तो मे बी वो एडजस्टमेंट हो, मे बी वो कुछ उसमें रॉन्ग डूइंग हो, कुछ आपस के कुछ देट कैन नॉट बी ए क्लियर मार्केट ट्रेड। सो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस इंडेक्स, सो ये भी एक इंडेक्स होता है जहाँ पे आप जाके रेशो वेयर द एडवांसेज। अगर सपोज बीएससी में 1500 मेन स्टॉक्स हैं, इसमें से अगर 1200 पॉजिटिव हैं, 300 नेगेटिव हैं, तो इसमें इसकी कॉन्फिडेंस लेवल पॉजिटिव है ओवरऑल। 750 है तो इसका मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो प्लेज अ रोल। relatively strength analysis, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो relative strength analysis means measured by several ways, calculating, so basically एक particular जो stock है that can overshadow the market,
तो उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, you know, investor will earn higher return by investing in these securities which have demonstrated relative strength in past because of the relative strength in the securities. Like for example, I will not like to tell here, but कुछ एक जो शेयर्स हैं वो ओवर परफॉर्म करते हैं मार्केट को बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ. अब लोग उसमें पैसे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि देयर आर वेरियस अदर थ्योरीज, वेरियस अदर रिस्क रिवॉर्ड इन्वॉल्व. ऑड लॉट थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है जैसे मैं बोल रहा था. अगर सबका कॉन्फिडेंस ऊपर है, सब लोग बोल रहे हैं, इतने सारे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट कम्युनिटी है या जो ब्रोकरेज रिमोट आ रही है कि भाई सपोज ये पर्टिकुलर शेयर, रिलायंस की बात कर लेते हैं, सब दुनिया में रिलायंस ही चलता है, ये ऊपर जाएगा जाएगा. अलग अलग इसके प्राइस टारगेट आ रहे हैं बाई के. अगर सपोज अभी 4,000 पे चल रहा है तो ये 4500 पे जाएगा जाएगा. आपने उल्टी कॉल ले ली, ऑड लॉट. भाई सब लोग जो बोल रहे हैं मैं उसका ओवर करूँगा, मेरी मार्केट गिरने वाली है, पता नहीं यूएस में क्या होगा, ये दोबारा 3500 पे आएगा फलाना. तो ये भी एक थ्योरी होती है. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके भी आप अगर कभी भी एनडीटीवी वगैरह खोल के देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये जो एनालिसिस बैठे होते हैं, तो ये एक ऐसे करके एक चार्ट सा बना लेते हैं, पीछे आने वाला है. तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल कि इसके ऊपर तो जाएगा नहीं ये, और ये आ गया आपका सपोर्ट लेवल के इसके नीचे भी नहीं जाएगा. अगर ये टूटता है तो फिर वो कहीं पे भी जा सकता है. ये नेवर नो, थोड़ा ज़्यादा जाता है कई बार, ये टूटता है तो कहीं ज़्यादा जा सकता है. तो ये होता है सपोर्ट का मतलब, जहाँ तक प्राइस इतने तक अभी सपोर्ट चल रहा है, या सपोर्ट का मतलब जिससे नीचे नहीं जाएगा. रेजिस्टेंस का मतलब जिससे ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज बेसिस द प्रीवियस हिस्टोरिकल ट्रेंड. ठीक है, खुद पढ़ोगे आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. चैनल सेम थिंग, ये रही हेड एंड शोल्डर चैनल बन गए, ये उसे चैनल फॉर्मेशन. बेसिकली ये सारे जो वर्ड्स हैं, चैनल, वेज, यू नो हेड एंड शोल्डर. अब ये हेड है, ये दो शोल्डर है, ये फॉर्मेशन बन गई. सेम वही चैनल. ये टॉप था, यहाँ पे उल्टा भी बन सकता है ऐसे, ये रहा, ये टॉप वाला हो गया, ये बॉटम वाला हो गया. तो ये बेसिकली इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा. अगर ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है. यहाँ पर भी एक, अगर यहाँ तक तो रुकेगा ही रुकेगा, दैट वे. ट्राइंगल बन गया, ये सारी चीजें देखो. बेसिकली डबल टॉप बॉटम, इसमें दो बार बॉटम बना दिया इसने. डबल बॉटम बॉर्डर, इसमें दो बार टॉप पे बॉटम बनाया इसने, और दो बार इसने बॉटम में बॉर्डर बना दिया. अब बोलोगे कि सर ये रहा, ठीक है. तो आप बोलोगे कि सर ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज ऑल अबाउट, क्यों पढ़ा रहे हो आप ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, इसमें क्या है पढ़ाने के लिए. इसको लोग बड़े ध्यान से पढ़ाते हैं. आप अभी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग का कोर्स करोगे, आपको यही चीज दिमाग लगा लगा के दबा दबा के सिखाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे. बट भैया मेरा वो एक्सपर्टाइज नहीं है ना. मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब सीखो, बट मैं रोक भी नहीं रहा किसी को. अगर आपको कोई जॉब दे रहा है, इफ इट्स योर जॉब एंड इट्स यू आर नॉट योर ओन मनी, एंड समवन इज आस्किंग यू टू पब्लिश दी टाइप ऑफ थ्योरीज, दी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, यू कैन पब्लिश इट. ध्यान ही तो देना है. गैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो गैप क्या होता है, कल सपोज डीएलएफ का शेयर 850 रुपए पे क्लोज हुआ कल से X-1, आज वो कितने पे, ओपनिंग कितने पे हुआ. So there is a term called gap, gap up opening, gap up closing. Gap up opening ये होता है. तो gap up opening can be positive और can be negative. अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, कल रात को बंद हुआ था, सुबह मार्केट खुली, 1 मिनट में ऐसा, मतलब कई बार यहाँ पे 5% भी ऊपर, पूरा एनएससी पूरा मार्केट खुल जाता है लंबा. क्यों? क्योंकि जो नाउ वी आर लिविंग इन ग्लोबल वर्ल्ड, 24/7 चल रहा होता है काम. तो पीछे सिंगापुर में भी हमारी SGX निफ्टी ट्रेड हो रही होती है. यू नो कॉम्प्लेक्स है मार्केट. हमारी जो इंडिया के कुछ एक प्रमोटर हैं, उनके कुछ एक शेयर्स इन सम और अदर फॉर्म यूएस में भी लिस्टेड है. तो यूएस कल बंद होके खुलता है. मैक्रो फैक्टर, इकोनॉमिक, ये सब चेंज हो जाते हैं. किसी बजट का कोई रिजल्ट शाम के क्लोजिंग के बाद आता है, तो उसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग और गैप अप, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस, पहले भी वो ट्रेंड ही था, उसी ट्रेंड जो जिससे वो ट्रेंड लाइनें बनती हैं, दोज आर कॉल्ड मूविंग एवरेजेस. अब 3-4 तरह की मूविंग एवरेज बहुत चलती हैं. आई विल हम्बली सजेस्ट कि आप 15-15 मिनट 9 बजे से लेके 9:15 या 9:15 से लेके 9:30 तक 2-4 चैनल हैं, BT, CNBC, NDTV प्रॉफिट, जी बिजनेस, इनको आप क्या कहते हैं देख लो.
आप ये सारे वर्ड सुन लोगे। तो 200 डेज मूविंग एवरेज क्या चल रही है? देखो कोई बंदा 200 डेज तक लगातार कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है, तो उसके चांसेस है कि वो आगे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देके आगे और इम्प्रूव करेगा। 60 डेज से वो इंटरमीडिएट टर्म है, अगर कोई 60 दिन तक लगातार इम्प्रूव कर रहा है तो वो आगे भी 6-7 महीने इम्प्रूव कर सकता है। मतलब 2 महीने इम्प्रूव किया है तो वो 2 महीने 3 महीने और भी इम्प्रूव करेगा। 10 डे मूविंग एवरेज वेरी शॉर्ट टर्म में, अगर कोई लगातार 10 दिन ग्रो हो गया है तो इसका मतलब कि वो रैंडम वॉक से थोड़ा सा आगे निकल गया है, अब वो बढ़ेगा शेयर। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ ही लिया था। एक्सपोनेंशियल भी वही होती है चीजें। हाँ, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ क्राउड साइकोलॉजी। सो बेसिकली तो ये साइकोलॉजी की कहानी है। ट्रेंड परसिस्ट इन द सेम टाइम, शिफ्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सारे जो शेयर्स होते हैं, अगर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बॉन्ड प्राइस, देखो इक्विटी इज ए रिस्की इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी से जस्ट नीचे बॉन्ड आता है, बॉन्ड के नीचे एफडी जाती होंगी, जो भी कॉर्पोरेट के एनसीडी जाते होंगे। तो अगर बॉन्ड में मेरे को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लग गया, लाइक सपोज 10%, 15%, तो बंदा इक्विटी में डालेगा क्यों? इक्विटी में बंदा आता है 15% की लालच में, एफडी में उसको मिलता है 6 से 7%। बॉन्ड लोगों को समझ में नहीं आता, बॉन्ड में आपको 10% मिल जाता है, बट ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है इसमें। तो अगर अगर बॉन्ड में ही यील्ड आपको अच्छी मिलने लग गई, देन पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन एफडी। सो वहां पे डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई का मतलब कैश, जब बंदा खरीदेगा तभी तो रेट बढ़ेगा। एवरी सिंगल डे मार्केट में एडिशनल कैश आ रहा है, कैश बाहर नहीं जा रहा, कुछ जितना जाता है उससे ज्यादा आ जाता है। मार्केट का मतलब, मार्केट में जो इन्वेस्टेड कैश, इन्वेस्टेड का मतलब किसी जो ट्रेडेड वैल्यू है, वो कैश मार्केट में तो नहीं पड़ा रहता। आपने एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दी वैल्यू ऑफ परचेजेस एटसेट्रा, हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ परचेजेस। तो कई बार अगर बॉन्ड में चला गया तो बॉन्ड में चला जाएगा, रियल एस्टेट सस्ता हो गया, लोग रियल एस्टेट में चले जाएंगे, गोल्ड में भी जा सकते हैं। सो जब कहीं पे कुछ मिल ही नहीं रहा होता, फ्री में बैठे होते हैं लोगों के पास, डिपेंडिंग अपन क्या चल रहा है, फिर वो इक्विटी में भी आ जाते हैं। मोस्ट टेक्निकल एनालिसिस नॉट एबल टू ऑफर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा। चाहे वो 60 दिन की मूवी में, जैसे मैंने अभी बोला कि कोई 200 दिन तक मूव हो रहा है तो दे आर रेडी फॉर अ बिग ब्रेकआउट। क्यों भाई, व्हाट्स द लॉजिक? कोई 60 दिन चला है तो अगले 3 महीने और चलेगा 200, क्यों? तो कन्विंसिंग आंसर नहीं मिलेगा। दीज आर जस्ट साइकोलॉजी है भैया, ये सारी क्राउड साइकोलॉजी। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ यार। आई एम सिटिंग ऑन डिसेंट कैश। जब मार्केट 16-17 हज़ार थी, 20 पे था, 25 पे था, लगाए भी पैसे, मैं ये नहीं बोल रहा, 55 पे था, आई वॉज टेम्पटेड एनफ टू इन्वेस्ट। अब ये 80 पे मार्केट बैठी है, 79 पे लगाए मैंने पैसे। भाई मैंने 150% मार्केट मिस कर दी बिकॉज ऑफ माई साइकोलॉजी। सेम जो शेयर मुझे 500-600 रुपए में मिल रहे थे, वही शेयर मैंने अभी 1000 रुपए में खरीदे हैं। जो मुझे 1000 रुपए मिल रहे थे वो मैंने अभी 1300-1400 में खरीदे हैं। इंडिगो का एग्जांपल देता हूँ, 1700-1800 में घूम रहा था, कैश लॉस हो रहा था, कोविड में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, उस टाइम से 250 गुना बढ़ गया शेयर, मैंने अभी 4200 रुपए में खरीदा है। तो सर आप तो फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं भाई, नहीं। फ्रस्ट्रेट या डिसअपॉइंट बंदा तब होता है जिसको एक्चुअल लॉस हो। मेरे को तो नोशनल लॉस भी नहीं हुआ, मैंने अपने पैसे से इंटरेस्ट कमाया। अब वो अलग बात है कि इंटरेस्ट 7-8-9% ही आता है, मैंने कुछ रियल एस्टेट में डाला। सो मार्केट साइकोलॉजी, क्राउड साइकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Imperiling evidence in support of random walk hypothesis cast its shadow over the usefulness of the। देखो अब आपने बोल दिया रैंडम वॉक है, तो थ्योरी क्या हुई? इसका मतलब टेक्निकल होना नहीं चाहिए। रैंडम वॉक का मतलब वो अपने आप मर्जी से चलेगा, तो भाई फिर पढ़ा क्या रहे हो आप? कुछ नहीं पढ़ा रहे। By the time an up and down trend may have been signaled by technical analysis, it may already have taken place. So जब ये जो ट्रेंड होते हैं, जब तक आप उसका कोई देखो, या तो आप ओवर स्मार्ट, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड आपको दिखते हैं तब तक कोई ना कोई उसका एडवांटेज ले चुका होता है। एडवांटेज का मतलब बाय बॉय का। जब तक आपको लगेगा ये ट्रेंड चल रहा है, जिस दिन आपने लिया शेयर नीचे आने लग गया, क्या पता आपने यहाँ ले लिया तो आप करोगे। मजा तो तब आता है ना जब आपने यहीं पे ले लिया हो तो यहाँ पे निकलते, फिर मार्केट नीचे जाते, फिर आप यहाँ पे ले लेते। तो ये टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस मस्ट बी a self defeating proposition. With more and more people employing it, the value of such analysis tend to decline. This is the line.
ये अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग प्रोपोजिशन है, जितना मर्जी कर लो, अगर सबको ये जो बैठे होते हैं ऊपर सुबह मार्केट एक्सपर्ट, इतना उनको पता होता तो पैसे बना चुके होते। और मैंने तो कईयों की स्टोरी सुनी है, वो बोलते हैं हम 4-4 साल 5-5 साल लॉसेज में थे, एक साथ फिर बढ़ गए। तो भैया सीधी सी बात है, वो तो मार्केट ही बढ़ी है। बट कुछ कुछ लोग इसको अपनी एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं जिंदगी भर, डे इन आउट डे नाइट, वो भी एक चीज है। As a CA, as a finance professional, we shall know what the technical analysis stand for. We shall not altogether discount it. As I'm telling, trend is friend. Market जब grow कर रही है, grow करेगी। मैं खुद का एग्जाम्पल हूँ, 30,000 40,000 50,000 की मार्केट छोड़ के मैं 78 पे एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट दोबारा आ गई है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3 साल तक तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम इन सम फॉर्म और अदर बना रहेगा। सो एंड ये पहले 72-73 होती थी, एकदम से 80 हुई है मोदी के थर्ड टर्म्स के बाद। तो इसमें भी, इसको भी आपको पता होना चाहिए। मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था, मैंने कुछ एक शेयर लिए जिसका फंडामेंटल कुछ नहीं कहता, बट क्योंकि देयर इज क्राउड साइकोलॉजी एटसेट्रा, दे डू प्ले अ रोल एंड यू शैल नो इट। आपको पता होना चाहिए एज ए सीए, एज ए प्रोफेशनल, एज एन एजुकेटेड पर्सन कि क्या चीजें होती हैं, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। बट इन लॉन्ग रन, if you want your capital to be 100% protected, you shall value the fundamental analysis. Chances of fundamental in long run getting uh, giving you adverse or negative outcome are very very thin. I'll say less than 5%. But chances of technical analysis getting wrong are 50%. More than that, I'll say. So they do not know what they are saying. चलो, with this we end this chapter. So more of a theory chapter, थोड़ा बहुत growth वगैरह के थे। I think एक दो theory chapter और रह गए, उसके बाद we will be banging with the main practical subject, क्योंकि ICI को practical से मतलब है। But as a CA we shall know the concepts also. When we know the concept, when we know the theory, we will feel much easier to solve the practical. चलो guys, all the very best. See you soon. Take care. Bye bye.